O hidden light, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Brothers and sisters, we welcome you all in the Shankar Lodge Delhi online meeting today, this Saturday evening. We are privileged that Brother Shikhar Agnihotri, a national lecturer and international speaker, is with us today, and he will share his thoughts on the topic Diagram of Meditation by H.P. Blavatsky. Though he needs no more introduction, as most of the persons know, but as a custom, we may just tell something about him. Brother Shikhar Agnihotri belongs to Lucknow, a city which also happens to be home of eminent theosophist Dr. I.K. Temni. He belongs to a theosophical family since his mother is a long-standing member of Theosophical Society and he used to accompany his mother to various cities to attend study camps. Eventually, he became a member of TS in 2008. He did his graduation in nautical science from Mumbai University and worked in shipping industry for about 10 years. Presently, he is residing and volunteering in Adyar Administration Office with family and along with his wife, who is also volunteering at Adyar Theosophical Academy and imparting ethical education in recently founded School of Theosophical Society. He is propagating theosophy since long and has lectured from various stages. He has been appointed as national lecturer and international speaker by the India section of the Theosophical Society. He has conducted lectures, study classes, seminars, school college visits in various parts of India. He has also written articles for the Theosophist and the Indian Theosophist, Dharmapath, Hindi Quarterly magazine of UP Federation, and Wake Up India, and French and Spanish theosophical magazines. He has also been conducting and assisting in the youth camps around India and especially at Bhowali, the Himalayan center of the TS. He is founder member and former secretary of Pragya Lodge Lucknow, and also of Maitri TOS Group Lucknow. During the time of Corona pandemic, he has started a YouTube channel, Pragya CS Studio, to take theosophical teachings in simple manner to as many as possible in English, Hindi, Spanish, Portuguese languages, along with Catalina. Recently, Pragya CS Studio created Universal Theosophical Calendar for the year 2021 and thereafter in 2022, which is free for all. Those who wish can contact him for a soft copy. Now, without taking any more time, I now request Brother Shikhar Agnihotri ji to please give his talk. थैंक यू ब्रदर माथुर जी। मैं पूछना भूल गया, इंग्लिश, हिंदी और मिक्स लैंग्वेज। आप मिक्स ओके ओके, अच्छा समझे, वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मिक्स कर लेंगे तो जो लोग हिंदी समझते हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, हल्का फुल्का मिक्स कर लीजिएगा। ओके। तो सबसे पहले उस गुरु तत्व को याद करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सभी आदरणीय बंधुओं को बहुत बहुत सादर प्रणाम और once again thank you for giving this opportunity. और I really appreciate what Brother Mathur ji said, that what I will be sharing is not a talk based on certain literature or which we have in the books, but it will be my understanding or the thoughts that I have had जब HP Blavatsky का जो मेडिटेशन डायग्राम है उस पे हम लोग चिंतन करते हैं या करें, क्योंकि I know that most of you or all of you are already familiar with meditation, and not only familiar but practitioners, even serious practitioners of meditation. And I am not an authority on this subject, and but also we know that this is something in which the ultimate answer or the ultimate guidance comes from within. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने समझा है वो सबके लिए सेम हो. हम में से हर किसी को उस पर अलग अलग इंसाइट्स और विचार, आइडियाज आ सकते हैं. तो इसीलिए जो whatever I will share is some of the basic things that I understood from this diagram of meditation. And before going into the subject, the diagram of meditation पे हम लोग जाएं, थोड़ा सा हम लोग meditation itself क्या है या हमें क्या करना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा समय दें तो it will be better, क्योंकि meditation has become such a popular thing, or rather I would say a business, because on one hand it is a very holistic thing, but we know the human mind, it can convert any holistic thing into a mundane thing. तो वो पॉपुलर तो है, लोगों को उससे बहुत फायदा होता है, but at the same time it has become a commercialized term also, और it has become like a jungle, a forest, जहाँ पे अगर कोई नया व्यक्ति आता है जिसे इस मार्ग पे चलना है या उसने कहीं से सुना है कि ध्यान के बारे में, तो either he or she gets confused or lured away by one of the business houses which are running in the name of meditation by paying hefty fees, which has become a benchmark sometimes, that the higher the fees, the better the quality, but only to find oneself disillusioned later. और ये ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेशन जो शब्द है वो कुछ और शब्दों की तरह लाइक लव और गॉड या प्रेयर, इनकी तरह मेडिटेशन शब्द का उपयोग भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया. कई बार तो केवल जो हमारी थॉट पावर है, इमेजिनेटिव पावर है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसको भी मेडिटेशन का नाम एक कहने के लिए दे दिया जाता है. सो इससे भी जो मेडिटेशन है उसके बारे में काफ़ी विचार लोगों में आते हैं. But of course different people may have different understanding of it. But what happens in that is that some credulous, innocent people becomes the victim of the cunning. Most of the times only our thought power, the working mind, is misunderstood as meditation. But limitation of language, what if you want to say, or the making the subject or title more interesting, attractive, or whatever the reason, the term meditation is used, and therefore too much confusion arises. And if you search in Google regarding types of meditation, we will come across different types of meditations: Zen meditation, mantra meditation, transcendental meditation, mindfulness meditation, even spiritual meditation,
focused meditation, as if like unfocused meditation also exists maybe, movement meditation, progressive relaxation, loving kindness meditation, and so on and so forth. And the reason for this confusion, I think, is the kind of approach that we take towards meditation. Because the first question that normally a person asks is, how should I meditate? Or how to meditate? Or which method to take up to meditate? But doesn't this question mean that I already know what is meditation? Then only I am asking how to meditate. But that's why, excuse me, in my opinion, or in my understanding, before going into how to meditate, a more important question would be, what is meditation? Because when we ask how to meditate, it means that we assume that we already know कि हमें पता है कि ध्यान क्या है, और हम जानते हैं, और हमें बस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर गुरु के पास जाना है, वो हमें ध्यान करने का मेथड या टेक्निक सिखा देंगे और हमें अपने दुख दर्द से और हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें शांति मिल जाएगी. Why is even more important? Because the reason governs the means. The reason governs the means. हम कोई कार्य किस लिए कर रहे हैं, या हमें कोई चीज किस लिए चाहिए, उस पे डिपेंड करता है हमारा रास्ता क्या होगा. इसीलिए इफ यू सी, बुद्धा did not want solution for his own old age or for his own disease or for his own death. He was concerned about the multitude. He wanted them. He wanted to find a solution for the humanity. इसीलिए आप हम लोग जब एट द फीट ऑफ द मास्टर में पढ़ते हैं, विवेक, वैराग्य, गुड कंडक्ट. दिस गुड कंडक्ट को हम लोग अगर साधन चतुष्टय विवेक को आदि शंकराचार्य जी के साधन चतुष्टय से कंपेयर करें, तो उसमें ना मुमुक्षुत्व, that is desire for liberation. But in at the feet of the master it is said that even desire for liberation is a desire which we have to ultimately let go, and it should be replaced by love. तो इसका मतलब है कि हमारा रीजन क्या है कोई कार्य करने. हम केवल अपने पर्सनल दुख दर्द से मुक्त होने के लिए ध्यान कर रहे हैं या इससे मुक्त होना चाहते हैं, बट वी आर ऑल्सो concerned about the suffering of humanity. And that's why should I meditate? And then starts the real inquiry to get peace of mind, for stress management, to escape from my daily struggles of life, to acquire psychic powers, to do physical, mental healing, or to develop spiritual authority over others, to activate chakra, kundalini, without even knowing what it means, or just to follow a fashion, that to meditate is in fashion, so let's join some high-rated guru, or to know oneself, one's true nature without any conditioning, and in knowing oneself, knowing the world around us. Because depending upon why we want to meditate will depend the direction that we are going to. I'm not saying that any particular method or technique is right or wrong, but of course, whatever we do, it takes us to the next step. And because I'm saying, sharing this in the context of what we are going to study today, because in theosophy also, agar hum dekhen, there is no fixed method as such of meditation. There are methods to concentrate. There are
methods for auto suggestions or affirmations using the mind, but meditation as such, that this is the method for everyone, it's not given. What's given is that to be aware of oneself, to be aware of our body, our emotions, desires, and thoughts. But that also a general guideline on how to begin to know oneself. And that is why the diagram of meditation given by HPB, in true terms for me, it is not a diagram of meditation. It is actually the diagram of preparation for meditation. Because when we go through that diagram, we'll see that in that a lot of mental exercises are involved. But because it's a very, she has explained, I'm not sharing because I am just sticking to the essence of the diagram. I'm not sharing it, the history of it. Maybe in a short, I will just share later. But the essence of the diagram, that she has explained that when we do something, what are the consequences, and how, what those consequences, what transformation those consequences bring in our consciousness. So the diagram of meditation also is not a meditation in itself, but kind of preparations for meditation. और उसमें जो acquisitions, deprivations, वो एक तरीके से एक मिट्टी तैयार कर रहे हैं, preparation of the soil. और वो उसमें she herself gives hints in the diagram itself, on which we will come a little later. So what does meditation mean? The word meditation comes from the Latin root meditare, mid-16th century, implying contemplation, like observation, to ponder, even to heal. और अगर संस्कृत में ध्यान शब्द को देखें तो वो रूट ध्याय, जो कि धी मूल धातु से बना है, जिसका कि मतलब है बुद्धि और प्रज्ञा, और the faculty of direct perception by being aware, and which is associated with also goddess Saraswati, not just the goddess of knowledge, but the goddess of wisdom. And that is why this pragya or dhyana is important, is to observe. But how? What is so special about this observation? That we are able to observe, one is able to observe without any barrier in between. That is all what is required. Since that is not happening, चूंकि हम जो है उसको वैसा नहीं देख पा रहे हैं. क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि जिससे हम देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं? नहीं, आंख से देख रहे हैं, इंद्रियों से. वी आर receiving all the sense from the senses. We are receiving the vibrations. The vibrations are then collected and managed by our mind. हमारा काम मनस जो है, वो ब्रेन और वो सब हम लोग उसमें नहीं जाएंगे. How the communication happens from the senses to our काम मनस, तो वहां तक वाइब्रेशंस जाते हैं. एंड देन अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशनिंग, हम उस घटना को, उस व्यक्ति को देखते हैं. तो इसका मतलब देयर इज a screen or a colorful, if we want to say colorful barrier or colorful glass or something in between the observer and the observed. और शायद इसीलिए जो वैराग्य कहा गया है, it's so important because in वैराग्य, विवेक is already
Vairagya leads to quite some extent to this stage, because Vairagya is not just detachment or non-attachment, because in a way it is. When we are attached to something, obviously we cannot see the thing in its entirety. हम उस चीज को पूरा संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते. वो कहते हैं ना, डॉक्टर जो है वो किसी का भी कठिन से कठिन ऑपरेशन कर लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू हिज और हर ओन लव्ड वन, नियर एंड डियर वन, तो शायद उनका हाथ में थोड़ा वाइब्रेशन हो या कांपे या जो भी. Why? Because there comes the attachment. So all those things which were not coming in a person on whom the doctor was operating, who was not related, he was just a patient. Now all those things कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी wife है, या ये मेरा भाई है, now all these things will come and color the vision, so will not be able to see the reality. And that's why Virag is also संधि विच्छेद उसका जो होता है वो विरंज धन्य. Ranj means color, viranj means without color, observing without any color. And when we observe without any color the things around us, automatic the truth unveils itself. और जो भी सूत्र किताबों में दिए गए हैं, जैसे नीरवनाद में कि हर टूल के नीचे एक सर्प लिपटा हुआ है, या जब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि विषयों को विष की तरह त्याग दो, देन एक्चुअली, या जब जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आर यू एबल टू सी दैट देयर इज अ स्नेक एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. मतलब क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्रोध है, हमारा जो जेलसी है, या जो भी इस तरह की भावनाएं हैं, वो कितना नुकसान कर रही हैं. आर वी परसीविंग देम एज विश और एज सर्प, because we are so involved in that because of our conditioning. और ये जो डायग्राम ऑफ मेडिटेशन है, इसके माध्यम से भी वही तैयारी है कि हमें अपना जो धूल जमी है कंडीशनिंग्स की, उसको साफ करना है. वो एक शेर भी है कि उम्र भर गलती मैं यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना साफ करता रहा. So we go on doing methods, techniques to get some sort of peace of mind, some sort of visions, some sort of power, psychic power, or but is it really clearing the dust on the mirror of the mind? क्या वो इन पूर्वाग्रहों को, इन कंडीशनिंग्स को दूर कर रहा है? So basically अगर हम ब्रॉड टर्म में ध्यान या मेडिटेशन को लें तो इट इज लाइक टू हील बाय ऑब्जर्वेशन. हीलिंग स्वयं के अंदर की हीलिंग, यानी जो भी हमारे अंदर दबी हुई संस्कार हैं, वो चाहे किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो या हमने किसी के साथ बुरा किया हो, या जो भी संस्कार दबे हुए हैं, उनको ऑब्जर्वेशन के द्वारा निकाल के उनका कैथारसिस हो जाए एंड the wound is healed. वो wound क्या है? To basically we'll come on that to learn by observation about oneself, and therefore dhyan is the art of knowing oneself, one of the greatest art. And how to do that? That we are not going in that today. Today we'll be talking about the diagram of meditation, which tells us how to prepare for that. क्योंकि how to do that by beginning where we are, जहाँ हम हैं वहीं से शुरुआत करें, by observing ourselves in all our aspects. And who will observe? Of course, शुरुआत में तो a part of mind observes the other part of the mind, because immediately it does not happen that we are able to see that if any vibration is coming up in the body of anger, even liking, disliking, or whatever, in the beginning it's like
a part of mind. I am observing these vibrations happening within me. But then there comes a moment when these vibrations are me. And that is the time, that's what maybe J. Krishnamurti says, that when we really realize that this is happening, then that is when we are really able to see the effect of anger or anything. That is when we act so promptly that, जैसे कहते हैं ना, घर में आग लगी हो तो you will not ask here and there, you will just jump out and try to get out and then extinguish the fire. उस समय ये कैसे करना है, how to do that, what to do that, nothing comes in mind because the danger is immediate. So the tool is the mind. And how to prepare the tool, that's what we will be talking about today. Because we have to keep the tool, अपना जो हमारा औजार है उसको हमें अच्छी कंडीशन में हमेशा रखना चाहिए. और प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म में HPV कहती हैं कि माइंड इज प्योर कॉन्शियसनेस like a lens, but which becomes colored by innumerable prejudices, conditionings, emotions based on selfishness, and the light of buddhi is not able to pass through in its original form. In very clear words she has said that. So अब अगर देखें तो इसका मतलब जो भी innumerable prejudices, conditionings, emotions सब हमारे अंदर हैं, अगर देखा जाए और अगर पढ़ा भी जाए तो, जो कि हम महात्मा लेटर्स में पढ़ते हैं कि what is the reason for the majority of evil in this world. एक मिनट में जरा शेयर कर दूं. तो उसमें भी महात्मा ये कहते हैं जो रीजन है that is the sense of separateness. यानी इस मैनिफेस्टेशन में जो भी है, पहली बात हम जानते हैं कि वो द्वैत और एक से दो, तीन और फिर डिफरेंशिएशन होते हुए जो हमें बहुसंख्यता दिख रही है, डाइवर्सिटी दिख रही है, वो रूट में जाए तो एक है. लेकिन हम भी जब रूट में जाएंगे तो हमें यूनिटी अनुभव होगी. लेकिन चूंकि अभी हम उस स्टेज में है, सोच की उस स्टेज में है जहां पे द्वैत है, देयर इज डुअलिटी, एंड फ्रॉम डुअलिटी ओनली I would rather say not just duality, the sense of separateness. The sense of separateness जो उन्होंने कहा selfishness, ठीक है, duality में भी sense of unity हो सकता है, लेकिन जहां sense of separateness, self preservation, selfishness आ जाता है, from there arises all sorts of these tendencies in us. Bhai, insecurity, depression, anger, जो भी, या attachment also. भाई दूसरा है जो मुझे सुख दे रहा है तो I like that thing, a person. जो मुझे दुख नहीं, जो मेरा फेवर का है, I like that person. वो मेरा मित्र हो जाएगा, दूसरे शत्रु हो जाएंगे. So that is the root, the sense of separateness. और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि diagram of meditation is actually the diagram of preparation for meditation, as far as I understand. And in this, if you can see, a lot of mental exercises are recommended by HPV. पहली ही लाइन में वो कहती हैं, first conceive of unity. conceive यानी conceive एक तो होता है जब गर्भ धारण होता है, बट एक तरीके से उसको भी एक सिंबॉलिकल फॉर्म है कि हम इस विचार को से अपने आप को इतना भर लें
इस विचार से, यूनिटी के विचार से, कि फिर हमें कहीं कोई भेदभाव ना नजर आए। उसको मतलब हम अपने दैनिक जीवन में इतना उससे ओतप्रोत हो जाएं कि हम कहीं हमें द्वैत का विचार भी ना आए। सेकेंड लाइन में वो कहती है देन मेडिटेट लॉजिकली एंड कंसिस्टेंटली। ऑल्दो यूजिंग द वर्ड मेडिटेट, मे बी यहाँ पे कह रही है कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए, कि लॉजिकली एंड कंसिस्टेंटली। क्योंकि कई बार होता यह है कि हम चलते हैं किसी रास्ते पर, बट डिस्ट्रैक्शंस के कारण कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक जाते हैं, और फिर वापस रास्ता आने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। वो वक्त कुछ दिन का हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, कुछ जीवनों का हो सकता है। कई बार लोग आके भी इस रास्ते से किसी दूसरी जगह या किसी ऐसे उसमें चले जाते हैं जहाँ किसी को लगता हो कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं होता है, यहाँ तो कोई तामझाम नहीं है, यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है। किसी पर्टिकुलर संस्था में या किसी पर्टिकुलर जगह पे तो बहुत एक्टिव है, वहाँ तो लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, XYZ, just giving an example. So let us, leave this, go there, and then from there to somewhere else. Similarly, our thinking process में जब हम स्टेप बाय स्टेप, दैट्स वो कह रही हैं कि मेडिटेट लॉजिकली एंड कंसिस्टेंटली। हमें तर्क को भी नहीं छोड़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ, यानी ये नहीं कि आज कर लिया फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद याद आई फिर कर लिया, नहीं। और ये भी नहीं है कि हमने जब हम 1 घंटा मेडिटेशन पे बैठे हैं बस हमने तब कर लिया, बाकी का दिन हमें कुछ नहीं करना, वो भी नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जब भी हम मेडिटेशन को कोई टेक्निक या मेथड मान के आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ नोइंग वन सेल्फ, तो हम सोचते हैं कि हमने उतने पर्टिकुलर टाइम में वी डिड दैट मेथड, दैट टेक्निक, नाउ जॉब डन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, व्हिच इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि अगर हम वो 1 घंटे ही बैठ रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे बाकी 23 घंटे में आना चाहिए, धीरे धीरे आए कम से कम। बट ये ना हो कि हम जैसे हमने कोई काम कर लिया, कोई एक्टिविटी कर ली, नाउ द जॉब इज डन, नाउ वी कैन इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन एनी अदर एक्टिविटी। इसी तरह एक्विजिशंस में आप देखेंगे तो वो कहती हैं परपेचुअल प्रेजेंस इन इमेजिनेशन, यानी वहां भी वो मन की जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करने के लिए कह रही हैं। ये सारा हम अभी मन के क्षेत्र में हैं, बुद्धि के क्षेत्र में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग। एंड इसी को कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो जब हम मन को, बिकॉज एज शी सेड इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, जब वो काम से प्रभावित होता है मन की एनर्जी हमारी, तो वो उस डायरेक्शन में चली जाती है। और जब हमारे इनर बीइंग से, हमारी बुद्धि से, हमारी आत्मा से, या जो हमारा हायर मनस है उससे प्रभावित होता है, तो वो मोक्ष का कारण भी, मोक्ष का कारण मीन्स इट लीड्स अस ऑन दैट वे जहां पे हम मन के परे जा सकने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए जो वो कह रही हैं बार बार कि मन का हमें अपना उपयोग करना है मन के ही पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए। इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक और है भगवद गीता में कि सेल्फ इज द एनिमी ऑफ द सेल्फ एंड सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ। उसका चैप्टर या नंबर याद नहीं आ रहा है, उसमें यही कहा गया है कि जब हम स्वयं ही अपने मन का उपयोग अपने मन के पूर्वाग्रहों और कंडीशनिंग से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, तो वो उसका मित्र है कि वो हमें इस मार्ग में आगे बढ़ा रहा है। तो वही यहाँ वो जो कह रही हैं, इमेजिनेशन का उपयोग करने के लिए कह रही हैं। लगातार सेकंड एक्विजिशन में कह रही हैं कंटिन्यूड अटेम्प्ट एट एटीट्यूड ऑफ माइंड,
हमें अपने माइंड को लगातार एफर्ट में अभ्यास और वैराग्य अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हमें कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल है, कंटिन्यूड अटेम्प्ट। सिमिलरली डेप्रिवेशंस में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कांस्टेंट रिफ्यूजल टू थिंक ऑफ द रियलिटी। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम ऑफ मेडिटेशन है या डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन है, वो हमारे मन को यूज करना है, उसको इस दिशा में लगाना है कि हम उसके परे जा सकें। और ये हम सब जानते हैं, थियोसॉफी में पढ़ते हैं और सभी इससे परिचित हैं कि एनर्जी फॉलोज थॉट, कि हमारा जो जिस दिशा में हम सोचने लगते हैं उस दिशा में एनर्जी लगने लगती है। और जो चिंतन, जो सूत्रों पे चिंतन का जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है जो सनातन धर्म में, वो क्या है, अभी हम लोग उस पर भी आते हैं। लेकिन उससे आगे चलने से पहले जस्ट मैं आपको ध्यान जो इस डायग्राम ऑफ मेडिटेशन की लास्ट लाइन है उस पर भी हम दे लें। इट्स जनरल नोट कि all the passions and virtues interblend with each other, therefore the diagram gives only general hints। ये शुरू में मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि in the spirit of theosophy also this is not a hard and fast diagram, कि बिल्कुल ही हमें इसको मतलब कि हम इसको रट लें या हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको वो करें। इसमें भी हो सकता है हमारी अपनी कुछ इनसाइट्स निकले। और जैसा कि वो कह रही है पैशंस एंड वर्च्यूज इंटरब्लेंड विद ईच अदर, यानी हर जो पैशन है उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्च्यू है, हर जो नेगेटिव है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है। वो ये कह रही है कि देयरफॉर द डायग्राम गिव्स ओनली जनरल हिंट्स। इसको हम वर्ड बाय वर्ड पकड़ के ना बैठ जाएं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा। ये हमें एक जो पहली लाइन को पढ़ें कि मेडिटेट लॉजिकली एंड कंसिस्टेंटली, हमें एक फ्रेमवर्क उन्होंने दिया है कि कैसे हमारा मन काम करता है और कैसे हम उसका उपयोग करके उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। और इस पे आते हुए अगर हम देखें तो ये जो एक्विजिशंस और डिप्रिवेशंस है ये एक तरीके से बीमारी का इलाज है। जैसे जब हमें किसी बीमारी का इलाज करना होता है, हमें कुछ होता है तो क्या करते हैं, एक तरफ से हम वो दवाएं देते हैं जो हमारे अंदर के वायरस को खत्म करें, और दूसरी तरफ से हम वो दवाई देते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करे, मल्टीविटामिन हो या कोई और हो। तो क्या हो रहा है कि हमने बॉडी को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं और जो उसमें एलियन तत्व आ गए हैं उनको हम खत्म भी कर रहे हैं। तो एक्विजिशंस और डिप्रावेशंस को हम उस तरीके से ले सकते हैं कि एक्विजिशंस है धारणा, कि हमें जो अपने मन में बसा लेना है, यानी एक तरीके से हम अपने वो अभी आगे बताएंगे कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा और हायर सेल्फ से हमारा कनेक्शन थ्रू अंतःकरण जो है हायर माइंड से भी वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। और डेप्रिवेशंस में अर्थात जो हम नहीं हैं उनसे हम, या जो हमने गैदर कर लिया है अपनी अज्ञानता के कारण, उससे हम फ्री होते जाएं। और यही दोनों हमें साथ में, इसीलिए मैं एंड पहले इसीलिए बता रहा हूँ, जो रिजल्ट है कि एक्विजिशंस का जो एंड है वो नोट कह रही हैं कि एक्विजिशन इज कंप्लीटेड बाय द कंसेप्शन आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम, बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट बी सेड, of course, because beyond that is beyond mind, that is up to each and every individual to realize। तो एक्विजिशन यानी धारणा हमारी जो संपूर्ण है वो परिपूर्ण तब होगी जब हमारे जो कंसेप्शन है पूरी तरीके से हमारे अंदर आ गया है कि आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम क्यों कहा है, हम लोग इस पे अभी आएंगे। यानी ये धारणा जब पूरी तरीके से हमने इतने डीपली, एक तरीके से इसको एफर्मेशन भी हम कह सकते हैं क्योंकि अभी हम माइंड के क्षेत्र में ही हैं कि हम उस पे इतना चिंतन कर रहे हैं। ये अगर हम देखें
तो क्या ये जो उपनिषदों के महावाक्य हैं उन पे चिंतन करने के समान नहीं है? जैसे फर्स्ट लाइन में भी वो कह रही हैं, फर्स्ट कंसीव ऑफ यूनिटी बाय एक्सपेंशन इन स्पेस एंड इनफाइनाइट इन टाइम। तो फर्स्ट, पहली ही बात उन्होंने जो कह दी है, देखिए, फर्स्ट कंसीव ऑफ यूनिटी। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है सारी इग्नोरेंस का, अविद्या का, वो है सेंस ऑफ सेपरेटनेस। तो पहले ही स्टेप पे वो उस फाइनल स्टेज की बात कर रही हैं, फर्स्ट कंसीव ऑफ यूनिटी। आप कोई ध्यान की मेथड नहीं करिए, आप कुछ मत करिए, लेकिन अगर आप अपने सामने आए हुए व्यक्ति से, वस्तु से, जंतु से, पशु पक्षी से आप एकात्म का अनुभव करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द प्रिपरेशन। वो उस फाइनल स्टेज की प्रिपरेशन है। क्योंकि हम अपने को अलग समझे हैं, इसीलिए तो ये सारा संसार उस तरीके से चल रहा है जैसा इस समय है, नॉट एज यूटोपिया जहां पे सब लोग ड्यूटी के हिसाब से, लव के हिसाब से अपना काम। तो फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने कह दिया है, फर्स्ट कंसीव ऑफ यूनिटी। बाकी मेथड क्या करना है, क्या है, नहीं है, दैट कम्स लेटर। और यूनिटी हम कैसे कंसीव करें, यूनिटी के भाव को, एकता के भाव को कैसे कंसीव करें? तो हम ये देखें कि द्वैत पैदा कैसे होता है। हाउ डज दिस सेंस ऑफ सेपरेटनेस अकर? देयर आर टू थिंग्स दैट गिव्स दिस सेंस ऑफ सेपरेटनेस, स्पेस एंड टाइम। भाई, मेरी और आप में जो स्पेस है और मुझे आप तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। That is why there is, that is why this gives the sense that we are separate, isn't it? इसको हम सभी अपने अपने टाइम में चिंतन कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर द फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंस ऑफ सेपरेटनेस। अगर मेरे और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जो भी है उसमें एकत्व हो जाए, या कुछ क्षण के लिए ही यूनिटी हो जाए, देयर इज नो स्पेस एंड टाइम। जो सेक्स की जो इतनी चारों ओर जो हम देखते हैं, उस सेक्स हैज बीन मेड सच अ सोर्स ऑफ एवरीबॉडीज अटेंशन इन द वर्ल्ड। उसका कारण शायद यही है कि वहां पे कुछ क्षण के लिए, डॉक्टर आई के तैमिनी ने भी अपनी वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी, एनी बेसन ने लिखा है कि भोजन एंड फिजिकल रिलेशन, भोजन तो आपने खा लिया तो वो आपसे एकात्म हो गया आप कुछ क्षण के लिए, बट when there is physical relation involved with a person, then you want that experience again and again, and that of course leads to attachment and possession and whatever, different situations. तो ये जो स्पेस और टाइम है, यानी दो चीजों के बीच में स्पेस और एक चीज को दूसरे तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, that gives a sense of separation. मैं अलग हूं, and that will remain as long as we are within the field of physical, astral and lower mental, and even higher mental to some extent. Once we are at the Buddhic consciousness, which is unity, जहां पे द्वैत मिट जाता है, in the sense there is sense of unity, तो there is no more this duality, the difference, and that's why that love appears there, जिसको हम brotherhood कहें या siblinghood कहें या sisterhood कहें। तो that is what she is talking about. The first conceive of unity, how? By expansion, यानी,
और नीचे लिखा उन्होंने आइदर विद और विदाउट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी या तो हम ये सोच लें कि मैं इतना एक्सपैंड करता जा रहा हूं कि मेरे अंदर समूचा ब्रह्मांड समा गया है, या we just dissolve ourselves and just experience the vastness of space and infinite in time, that is past, present, future, जो भी हमने ये excuse me भेद कर रखे हैं, ये सब तभी तक है जब तक हम एक खास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं. बियॉन्ड दैट there is time, there is duration, but not a psychological past or psychological future kind of thing. Everything is there, with or without self identification. तो क्या अगर हम इसको सोचें, जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, Isn't it the same? जब हम उस पे चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, contemplation कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, that is the same thing we are conceiving of, because what is Brahma? Brahma is, that is ब्रह धातु से बना है जो कि expand करता जा रहा है. Brahma is not, I mean, we are not talking about some image personification who is sitting somewhere in the heaven or some low, but that consciousness that is expanding. So it's the almost, for me it's the same thing कि आपने उसको जब imagine, उसके बारे में चिंतन शुरू, because we become what we think, and that is the source, that is the secret of upasana. If I am upasak of Hanuman ji, I am upasak of Krishna ji, I am upasak of some Kali, Ma Kali, or whoever, the ultimate purpose is that those virtues, those conscious, because Bhakt and Bhagwan becomes one. The Bhakt rises to the consciousness of the Bhagwan. So whatever we think upon, we become. So once we think of, we start imagining expansion in space and finite in time. And there are many people among us who have experienced this and who knows this by their checking and testing of the subtle energies, that this happens, energy follows the thought. So once we conceive that idea, expansion, then she is saying meditate logically and consistently. Okay, I'll go a little faster because of the time. तब वो कह रही हैं कि फिर ये जो आपने यूनिटी हमने की है, अब उस पर लॉजिकली और कंसिस्टेंटली स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमने जो अभी बात की कि जब तक, हालांकि उसको हम नाम दे देते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, दैट्स द सेम थिंग एज मोर और लेस फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल एंड बुद्धिक और आत्मिक. फिजिकल काम मनस, बुद्धि मनस एंड तुरीय आत्मिक, कि धीरे धीरे वी go higher and higher. लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? वो कहते हैं then the normal state of consciousness must be molded by. ये देखिए molded शब्द यानी आकार देना, यानी जो हमारी नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल जागृत कॉन्शियसनेस जो है हमारी यही तो प्रॉब्लम है कि हम सब पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या जब हमें कोई टेस्टिंग पीरियड होता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं. तो वो जो हमारी नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें उसको हमें कैसे मोल्ड करना है. तो वो एक्यूजिशंस के बारे में कहती हैं, परपेचुअल प्रेजेंस इन इमेजिनेशन इन ऑल स्पेस एंड टाइम, यानी परपेचुअल, बिना अवरोध के, बिना रुके हुए अपनी कल्पना में हम हमेशा उसको याद रखें जो कहा गया है कि वो किसी भी रूप में हो, राम राम, ओम, या आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम, आई एम द डिवाइन लाइट, व्हाटएवर वर्ड वी वांट टू यूज. लेकिन अगर हम उसको याद रखें, परपेचुअल प्रेजेंस इन इमेजिनेशन, हम चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, किचन में हो, कहीं भी हो, अगर हम उसको याद रखेंगे तो इससे होगा क्या? वो कह रही है कि अगर हम ये हमेशा याद रखेंगे तो इससे एक लेयर हमारी मेमोरी की तैयार हो जाएगी, सबस्ट्रेटम ऑफ मेमोरी.
भाई जब हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हम जैसे मान लीजिए कल हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, हमें उसकी तैयारी करनी है, तो हर समय हमारे माइंड में वो घूमता रहता है कि नहीं, कि कौन से क्वेश्चन हमें प्रिपरेशन करनी है और ये है फलाना। तो अगर कोई सोते में भी अगर हमें जगा के पूछेगा उस समय तो शायद हम बिल्कुल सही जवाब दे देंगे, या हमें कल का पूरा हम इतने उस समय उस थॉट से कि कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे उसकी ये तैयारी है, और उसके बारे में आई एम सो, यू कैन इवन से द वर्ड प्रेग्नेंट विद दैट थॉट, कि जागृत तो जागृत, सोते में भी, ड्रीमिंग में भी हमें वो जो सबस्ट्रेटम ऑफ मेमोरी है कि मेरा कल इंटरव्यू है, वो बना रहेगा। और यहाँ पे जो यूनिवर्सैलिटी की फीलिंग है, मेमोरी है, वो कह रही है वो बनी रहेगी। और उससे होगा क्या? इट्स मैनिफेस्टेशन इज करेज। और ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर ये भाई मेरे अंदर भय क्यों है? मुझे यही तो भय है कि सामने वाला या कोई भी XYZ मेरा कुछ नुकसान ना कर दे, इसीलिए तो मेरे अंदर भय है, या मैं डरता हूँ कहीं मैं इस मामले में इसलिए ना पढ़ूं कि ये हो जाएगा, या कुछ भी आई मीन व्यक्ति ना करे, प्रकृति कर दे, स्थिति कर दे, यही तो डर है मेरे मन में। लेकिन when I am all space and time, I am thinking of universality all the time, कि नहीं भाई सब कुछ यूनिवर्स में नियम के हिसाब से हो रहा है, एक कॉन्शियसनेस है और सब इट इज गोइंग एज पर द प्लान, तो ऑटोमेटिकली आप हमारे अंदर करेज तो आना ही है। क्यों? Because with memory of universality, all dread vanishes during the dangers and trials of life. तो जब ये यूनिवर्सैलिटी आएगी तो फिर हम किसी भी खतरे से या किसी भी परीक्षा से जीवन में घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये भी एट रैंडम नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी कोई नियम कार्य कर रहा है। और जब इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरा कहते हैं कि कंटिन्यूड अटेम्प्ट एंड एटीट्यूड ऑफ माइंड टू ऑल एग्जिस्टिंग थिंग्स व्हिच इज नीदर लव, हेट नॉर इंडिफरेंस। यानी हमें अपने मन की वो स्थिति लाने का लगातार कंटिन्यूड अटेम्प्ट, प्रयास करना है, जो भी चीजें हैं हमारे सामने। यहाँ पे हालांकि वर्ड यूज किया है लव, हेट नॉर इंडिफरेंस, बट शायद मुझे लगता है वो शायद कहना चाह रही हो नीदर राग, नीदर द्वेष नॉर उपेक्षा। क्योंकि जनरली जो है हम लोग हेट को वो उल्टे को लव कह देते हैं, और लव भी अगेन वो बड़ा लूजली यूज हो जाता है कई बार वर्ड, तो कई बार हम लोग लाइकिंग को भी लव कह देते हैं, क्योंकि लव अगर हम पढ़ें तो दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड राग एंड द्वेष, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। hate is due to our selfishness, या liking disliking due to self, and liking also due to self, but love is a state where there is no self. So हो सकता यानी हम सभी चीजों के प्रति क्या एटीट्यूड रखें, ना राग, ना द्वेष, ना ही उपेक्षा। तो क्या इन तीनों के बियॉन्ड, which is of course beyond mind। ये हर व्यक्ति अपना तरीके से अलग अलग बाहरी तौर पे होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति की जो सिचुएशन है वो अलग है, लेकिन मेंटली भाई कोई राजमहल में है, कोई झोपड़ी में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो बाहर से अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन मेंटली सबके लिए वो सेम होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट काम। जब हम इस तरीके से अपने मन को लगातार ट्रेन कर रहे हैं तो लगातार हम एक साम्य अवस्था में या स्थित प्रज्ञता की अवस्था में रहेंगे, और इसके कारण ही हमारे जो वर्चूज हैं उनकी प्रैक्टिस में हमें ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वर्चू को भी वो कह रही हैं वो विजडम का ही आउटकम है। वो चाहे बेनेवोलेंस हो, सिंपैथी हो, जस्टिस हो, ये हमारे अंदर कब आते हैं? जब हम अपने रियल नहीं है, जो हम जब हमारे सेल्फ से, हायर सेल्फ से हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो ये वर्चूज ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव में आने लगते हैं। हमें उसकी प्रैक्टिस अलग से नहीं करने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम यूनिटी के बारे में सोचते हैं और एटीट्यूड ऑफ माइंड ये रखते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर आने लगते हैं, जो कि पर्सनैलिटी
को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जो इंट्यूटिव फैकल्टी है धीरे धीरे वो हमारी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। और थर्ड है द परसेप्शन इन ऑल एम्बॉडीड बीइंग्स ऑफ लिमिटेशन ओनली, यानी ये हमें बहुत टॉलरेंट बनाता है और किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं करता है कि अगर हम ये जाने कि भैया हर व्यक्ति हमारे संपर्क में जो आ रहा है उसकी अपनी लिमिटेशन है, अपने स्वभाव के कारण लिमिटेशन है, जैसे हमारी लिमिटेशन है अपने स्वभाव की, उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो हम उसको बदलने के बजाय हम स्वयं अपनी लिमिटेशंस को दूर करें और दूसरे के प्रति टॉलरेंट हो, तो उससे रिजल्ट यही होगा कि क्रिटिसिज्म विदाउट प्रेज और ब्लेम। तब हम किसी को बहुत ज्यादा उसकी प्रेज या बहुत ज्यादा उसको ब्लेम ये सब नहीं करेंगे, तब हम चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे और तब हम चीजों को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर किसी पे ब्लेम लगा देते हैं, किसी को बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं और इस तरीके से हम लोग या तो फेवर में या अगेंस्ट में चले जाते हैं। और एक्विजिशन की कंप्लीशन हम लोगों ने पहले ही बात की कि इट कंप्लीट्स बाय द कंसेप्शन आई एम ऑल स्पेस एंड टाइम, की अहम ब्रह्मास्मि। अब हम लोग डिप्राइवेशंस पे आते हैं जल्दी ही। डिप्राइवेशंस में क्या है, यानी हमें कांस्टेंट रिफ्यूजल टू थिंक ऑफ द रियलिटी ऑफ, अगेन ये हमें एफर्ट करना है किन चीजों का, कि जैसे एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी कहा गया है हमें रियल और अनरियल के बीच में भेद करना है। दैट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि हम सेपरेशन से, यानी लोगों से मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जगहों पे विजिट कर रहे हैं, कोई जगह हमें बड़ी पसंद आ जाती है, कोई व्यक्ति हमें पसंद आ जाता है, फिर हम अलग हो जाते हैं, या कोई हमारी मेमोरीज है बहुत सुखद, हम उसको याद करते हैं, या कोई जगह हमें बहुत पसंद आ गई थी, या कोई स्वरूप हमें बहुत पसंद आ गया था। तो इन सब को हमें लगातार ये सोचना है, रिफ्यूजल टू थिंक ऑफ रियलिटी, ये सब एक्चुअली वास्तव में, क्योंकि अगर हमें वो व्यक्ति पसंद आ रहा है तो सबको वो व्यक्ति पसंद आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। या हमें कोई जगह पसंद आ रही है तो सबको जगह पसंद आनी चाहिए, अगर वो जगह वास्तव में या वो व्यक्ति वास्तव में वैसा हो नहीं। चूंकि हम अपने चश्मे से देख रहे हैं इसलिए हमें वो वैसा जगह या व्यक्ति लग रहा है। तो ये जो रियलिटी है जिसको हमने वैराग्य विरंज धन्या कहा है, see the things as they are, constant refusal to think of reality of। तो इससे होगा क्या, जो हमारी फ्यूटाइल लॉन्गिंग्स हैं, जो हमारी व्यर्थ की छोटी मोटी इच्छाएं जिसमें हमारी माइंड की एनर्जी फंसी रहती है, अरे हम वहां हो जाते तो कितना अच्छा होता, अरे हम यहाँ ये खा लेते, अरे वो वहां का कपड़ा अच्छा है, अरे वो व्यक्ति, लोगों से एक्सपेक्टेशंस, दुखद मेमोरीज, किसी ने हमें हर्ट किया है तो हमारा दिल दुखा दिया है तो हम उसी को लेके बैठे हैं। ऑल दीज थिंग्स विल मूव अवे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे संस्कार बना रही हैं, ये भी हमारे मानसिक जो धूल है हमारे माइंड पे वो जमा रही है। तो ये इस तरीके से दूर करने के लिए होगा। फिर दूसरी बात है द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेंड एंड फो। अब हम इसको भी देखें कि ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा इस पे बात करने का इसलिए नहीं है क्योंकि एचपीबी खुद लिखती हैं प्रैक्टिकल ओकल्टिज्म में भी, और कि nobody is my friend, nobody is my enemy, everyone is like my teacher। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम इस तरीके से अप्रोच करें। और बल्कि एक्चुअली कई बार तो हम देखते हैं कि कई बार किसी ने अगर हमारे साथ या किसी के साथ ये ना हुआ होता तो हम वो ना हुआ होता, यानी ये गलत ना हुआ होता तो वो अच्छा नहीं हुआ होता। We can, if we observe the things in objective manner, we can see those things। तो फिर हमारा मित्र और शत्रु के बीच का जो भेद है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और एक ब्रह्म विहार भावना है बुद्धिज्म में कि उसमें आप सबको लविंग काइंडनेस भेजें, सबको आप करुणा, मैत्री और कंपैशन ये सब भेजें। तो उसमें आता है कि पहले आप उनको भेजें गुरुओं के लिए, फिर आप उनको भेजें जिनको आप प्रेम करते हैं, फिर आप उनको भेजें जिनको आप जानते भी नहीं हैं, फिर एंड में आप उनको भेजें जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। और धीरे धीरे ये करते करते, हालांकि शुरू में इट सीम्स अ मैकेनिकल वे, बट धीरे धीरे अ स्टेज शुड कम
जब आपको ये मुझे पसंद लगते हैं और ये मुझे पसंद नहीं लगते हैं, इन दोनों के बीच जब हम भेज रहे हैं अपने गुड विशेस, कोई भेद ना रह जाए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टिंग इन एब्सेंस ऑफ एंगर एंड बायस रिप्लेस्ड बाय जजमेंट। तब हम किसी के प्रति बायस नहीं होंगे, किसी के प्रति गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि हम उस चीज को उसकी वास्तविकता में देख के तब हम कोई निर्णय करेंगे। और अगेन देन कम्स पोजीशन एंड पर्सनैलिटी। हमारे जो मैंपन है, उसी से हमारा, उसी को हम बचाने में, उसी को हम बढ़ाने में, उसी को दिखाने में। जब कोई हमें अच्छा कह देता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई बुरा कह देता है तो बुरा लगता है। और इसको हम जीवन के छोटी छोटी चीजों में एक्सपेरिमेंट करें, वो चाहे हमारे पहनने के कपड़ों से लेके हमारे कुछ भी हो कि हमें किस तरीके से हम किसी के जैसा बनने के लिए वो करते हैं, या कोई फैशन है तो उसके लिए कुछ करते हैं, या ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऑल दीज थिंग्स, वैनिटी, रिमोर्स, ग्रीड, सेल्फिशनेस, एम्बिशन, इन सब को हमें नेगेट करने के लिए, जो नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं। एंड देन कम्स द सेंसेशन। सेंसेशन जो हमारी इंद्रियों से मिलता है हमें कि वो अच्छा लगता है, उसमें ग्लूटोनी यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना और किसी भी तरीके का अपनी इंद्रियों का ज़्यादा उपयोग, एंड लस्ट, काम वासना एटसेट्रा। और इन्हीं तरीके की और भी कोई भी जो सेंसेशन है उसको हम देखें और उसको रिप्लेस करें किसी इस जो शुरू में कहा है, परपेचुअल प्रेजेंस इन इमेजिनेशन इन ऑल स्पेस एंड टाइम। और these deprivations are produced by the perpetual imagination, जैसा कि वो कह रही है नीचे, without self delusion। ये और ऐड कर रही हैं, self delusion मतलब कई बार ये हो जाता है कि हमें लगता है भाई मैंने तो अपने क्रोध पे विजय पा ली, या मैं तो बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ, और मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हो गया, यानी अपने आप को हम धोखा देने लगते हैं। लेकिन जो सिंसियर, जो जेन्युइन व्यक्ति होगा उसमें ये चांसेस नहीं है, क्योंकि वो नीचे लिखती हैं कि देयर इज नो रिस्क ऑफ सेल्फ डिल्यूजन इफ पर्सनैलिटी इज डिलिबरेटली फॉरगॉटन। अगर हमें मालूम चल गया है कि हमें इस मैंपन को ही खत्म करना है, दैट इज द ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दिस एंडिंग दिस सेंस ऑफ सेपरेटनेस ऑफ एनी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो फिर ये सेल्फ डिल्यूजन नहीं होगा। तब हम सिंसियरली अपने आप को देख पाएंगे कि भाई मैं वाकई में ऐसा हूँ या केवल मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। और परपेचुअल इमेजिनेशन किस बात का? ऑफ आई एम विदाउट, मतलब मैं इनमें से किन्हीं, इनमें से कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, और ये सारी जो चीजें हैं वो बंधन का कारण है। एंड आई एम विदाउट एट्रीब्यूट्स, निर्गुण। तो निर्गुण क्या है? स्पेस। स्पेस को इसीलिए क्यों जो सूक्ष्मतम तत्व कहा गया है, हालांकि ये तो फिजिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर लेवल पे अगर हम बात करें तो स्पेस दैट इज द सूक्ष्मतम तत्व, आत्मिक लेवल कॉन्शियसनेस से कई बार उसको हम को रिलेट करते हैं कि क्या था, क्या है, क्या रहेगा। बुद्धिस्ट कैथेसिज्म में ये एक आता है क्वेश्चन, तो आंसर आता है स्पेस। और इसीलिए शायद जब घर में हम साफ सफाई करते हैं, घर से अननेसेसरी सामान को निकाल के किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, स्पेस बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि घर की वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाती है। बजाय इसके कि हम जगहों को, स्पेस को भर दें, जब हम जगह को खाली करते हैं, then actually we are inviting the divinity. And similarly, since we have filled our consciousness of mind with the contents of consciousness, and the contents of consciousness are our prejudices, our conditionings, sanskaras, which are the result of this sense of separateness. क्योंकि एक्चुअली इन्हीं का खोल के कारण ही मुझे लगता है कि मैं अलग हूँ। And the moment this खोल is broken down or dissolved or transformed, then
ओनली स्पेस रिमेन्स, घटाकाश और जो बाहर आकाश है वो एक हो जाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये डायग्राम ऑफ मेडिटेशन है, हमें किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, अपने माइंड पे काम करना है और काम करके माइंड के बियॉन्ड जाना है, ये हमें इस बात का बहुत ही सूत्र रूप में बहुत ही अच्छा एक हमारे सामने एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, टैबलेट के फॉर्म में इस पर्चे को हम अपने साथ रख सकते हैं, कहीं भी इसको रेफर कर सकते हैं, कहीं डिस्ट्रैक्शन हो तो इसको पढ़ सकते हैं बार बार और उस पर अपना चिंतन मनन कर सकते हैं कि कैसे माइंड का उपयोग करके हम माइंड के परे जा सकते हैं। एंड बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट बी सेड, बिकॉज मेडिटेशन एक्चुअली इज एवरीवन one's own journey which one has to tread oneself. उसमें हर व्यक्ति का स्वयं का एक्सप्लोरेशन है, रियलाइजेशन। और इसी के साथ मैं माथुर जी से कहूँगा कि मैं यहाँ सर इसको ख़त्म करता हूँ, टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। नहीं ठीक है। थैंक यू शिखर जी फॉर सच ल्यूसिड and simple interpretation of diagram of meditation by HPP, touching almost all the dimensions of meditation very deeply. Thank you. किसी और ने कोई क्वेश्चन करने हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अब करें। शिखर जी, यहाँ पे आपने एक बात बताई थी कि शुरू में जब माइंड का हम अभ्यास करते हैं तो एक पार्ट माइंड के दूसरे पार्ट को देखता है, तो क्या ये उपनिषद का वही जो है दो चिड़ियों वाला एग्जाम्पल, उससे समझना है? उसको कैसे समझेंगे हम, इसको जरा सा समझाएं। हाँ ओके वो एक्चुअली लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हम लगा सकते हैं, हालांकि वो एक और हायर लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि दो चिड़ियां जब डाल पे बैठी हैं और एक चिड़िया जो है वो इन्वॉल्व है और एक चिड़िया विटनेस के फॉर्म में उसको केवल ऑब्जर्व कर रही है, तो वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर परम तत्व है या मोनैड है, जो आत्मा बुद्धि का है, वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे लोअर माइंड, एस्ट्रल बॉडी, और जो हमारा पर्सनैलिटी है वो इन्वॉल्व है, इंडल्ज है और ये देख रहा है। यहाँ हम जो मेडिटेशन की बात, जो शुरुआत की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो अभी जो मुझसे बाहर है उसको तो मैं ये कह देता हूँ कि मैं अलग हूँ और मैं आई एम द सब्जेक्ट, यू आर द ऑब्जेक्ट एंड आई एम ऑब्जर्विंग। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन जब मैं अपने अंदर ले जाता हूँ, राइट, तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस तो सब में होता है भाई, बोलने से पहले या कुछ करने से पहले हमारे अंदर डिजायर, थॉट्स जनरेट होते हैं, लेकिन वो सब कुछ इतना तेजी से होता है कि हम सोचते हैं कि हम बिना सोचे या बिना किसी चीज के कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इस ऑब्जर्वेशन को अंदर ले जाऊं तो मैं ये पाऊंगा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे अंदर एक विचार उठ रहा है, बट इनिशियली जो ये ऑब्जर्वर है दैट इज माय माइंड ओनली, क्योंकि मेरा जो माइंड है अभी तो मैं उस जिसे कहते हैं हम लोग कि हायर सेल्फ या आत्मा बुद्धि है, वो तो अभी एज ए विटनेस पूरे उससे मेरा संपर्क हुआ नहीं है। तो अभी तो एक्चुअली आई एम ओनली ट्राइंग अ पार्ट ऑफ माय माइंड। इसीलिए देखिए कई बार हम लोग इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन हमें क्रोध आया और हमें क्रोध ने ओवरकम कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा माइंड का ही एक हिस्सा माइंड के दूसरे हिस्से को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो बेसिकली एट द सेम लेवल। लेकिन जब ये जो जय कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात जब हम ये बिल्कुल ही जो मैं अलग से होके देख रहा हूं ना देख के उस जो क्रोध की वाइब्रेशन है
बल्कि उसको क्रोध भी ना कहें, उसको हम नाम भी ना दें क्रोध का, केवल उस वाइब्रेशन को अनुभव करें कि वो मैं हूं, then that's what he is saying, then the transformation takes place. तब जो क्रोध एकदम, वो कहते हैं when you observe the thing as it is, that thing transforms. लेकिन अभी चूंकि हमारी आदत पड़ी हुई है कि मैं ऑब्जर्व सब्जेक्ट हूं, बाहर ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसी तरीके से मेरे माइंड का एक पार्ट मेरे माइंड को दूसरे पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए तो बीच बीच में देखिए जजमेंट आता है ना कि अरे ये अच्छा विचार आ गया, अरे ये खराब विचार आ गया, अरे मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम माइंड के तल पर ही ये कर रहे हैं और शुरुआत वैसे ही होगी। और इसी माइंड को ही हमें इस दिशा में लगाना है कि हमें ऑल स्पेस एंड टाइम की दिशा में हम उस यूनिटी को कम से कम सोचें धीरे धीरे। जब धीरे धीरे हम ये सोचना शुरू करेंगे, तब जो हमारा अंतःकरण का चैनल है, तब हम उसको वाइड करेंगे, और तब जो दूसरा जो चिड़िया है, जो साक्षी है, वो साक्षी जो परम तत्व है हमारे अंदर, या हम हैं बेसिकली, then it will come into force, and when that comes, तो जो flame of awareness है, उसकी flame में ही हमारा जो पूरा जो भी ड्रॉस है, जो भी गंदगी है, वो सब जल जाएगी उसकी केवल अवेयरनेस के कारण। लेकिन अभी हम केवल अपने माइंड से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, सो वी शुड स्टार्ट। बट धीरे धीरे इसमें भी जब हम देखेंगे धीरे धीरे कि देयर इज एन ऑब्जर्वर बट देयर इज नथिंग टू ऑब्जर्व, कि अब कोई विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एंड देन दैट ऑब्जर्वर विल आल्सो डिसॉल्व। And then, but of course, this is the thing everyone has to, work and research and explore. There is, and of course, the inner self is the ultimate guide on this. We cannot tell to other, or other cannot tell us what to do. Only an adept, of course, the adept, the guru, in the real sense, who knows our journey, who knows what is happening, is the only person who can guide, or our higher self. तो शिखर, किसी और ने कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है कुछ, तो प्लीज बताएं। धन्यवाद शिखर जी। सुषमा श्रीवास्तव। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपने जैसे एक शिक्षक समझाता है विद्यार्थियों को, उस तरह समझाया। और मुझे जय कृष्णमूर्ति की वो बात याद आ गई जिसमें आपने जो कहा कि मन को टाइम एंड स्पेस के परे जाना है, तो वो भी बिल्कुल यही बात आपने पूरी ये जो डायग्राम ऑफ मेडिटेशन के साथ साथ आपने साथ में जय कृष्णमूर्ति की बहुत बातें बताई जो फिर से रिमाइंड हो गई कि देश और काल के शब्दों में, अपने निष्कर्षों में, और हम अपनी टेक्निकलिटी में इतने फंसे हैं, और वो मन अत्यंत पीड़ित मन है जैसे आपने बताया। और ऐसा पीड़ित मन समग्रता से नहीं देख सकता, और जब हम समग्रता से देखेंगे किसी भी चीज को, तब जो है हम वास्तव में हमें बोध होगा, और वही सच्चा ध्यान है। तो ये मैं आपके उससे मैं टॉक से ये निष्कर्ष निकाल पाई कि हमको पीड़ित मन से सुखी मन बनने के लिए हमको देश काल से परे जाना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैंने इसको नोट कर लिया है। बहुत अच्छी बात कही कि हम टेक्निक ढूंढते हैं, लेकिन हम ध्यान क्या है उसका मीनिंग देखते हैं, लेकिन हम उस जो रियल सेंस है उससे परे हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी, आपकी टॉक में हमेशा एक तत्व रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू शिखर जी। और किसी ने कुछ कहना है या क्वेश्चन है? वो ये कृष्णमूर्ति जी ने कहा था अवेकेंड इंटेलिजेंस, अवेकेंड इंटेलिजेंस उन्होंने कहा, ये कृष्णमूर्ति। यस सर, ये आपका कहना था ना, अवेकेंड इंटेलिजेंस। हाँ, यस सर, वही प्रज्ञा, जो प्रखर प्रज्ञा है, दैट वही जागृत होगी। देन फ्रॉम दैट ऑन, प्रज्ञा मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान, direct perception without any barrier in between.
बहुत अच्छा आपने बहुत थैंक यू। थैंक यू। और किसी ने कुछ ऐड करना है या क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो अब हम लोग प्रेयर करके क्लोज करेंगे, समय हो रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।